सम्मान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। मेरा नाम जरा सिद्दीक, कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज हम हिंदी क्लब के उद्घाटन और प्रेमचंद जयंती ऑनलाइन समारोह में हैं। इस अवसर पर सबकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय एवं मुख्य अतिथि, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, सबको मेरे सादर प्रणाम। इस समारोह का शुभारंभ ईश्वर की प्रार्थना से करते हैं। इसके लिए सुनैना उपस्थित है। ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും, അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും. പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധി വിധി പറയും ദിവസത്തിന്നേകാധിപനെ നിയതമാരാധിപ്പോ ഞങ്ങളങ്ങയെ മാത്രം സതതം സഹായമർത്തിപ്പതും തിരുമുൻപിൽ. നയിക്കേണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നനു ഗ്രഹപാത്രമായോർത്തൻ മാർഗത്തിൽ. അങ്ങയാൽ കോപിക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല, സന്മാർഗഭ്രഷ്ടർ തൻ വഴിയിലുമല്ല. ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും, അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും, അഖിലേശ്വരനല്ലയോ सकलस्तुतिम। धन्यवाद सुनैना। इस समारोह का स्वागत भाषण देने के लिए मैं रिजा रशीद को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात, सभा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रिजा रशीद है। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय अतिथि, शिक्षकगण, प्रिय सहपाठियों, आज हम हिंदी के मशहूर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की 131वीं जन्मदिन समारोह में है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ था। वे कलम का सिपाही नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 15 उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। आज हम ऐसे एक महान साहित्यकार का जन्मदिन समारोह में है। सबसे पहले इस समारोह का अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए हमारे प्रिंसिपल श्रीमती सुचित्रा जी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। फिर हमारा हिंदी क्लब और प्रेमचंद जयंती का उद्घाटन करने के लिए उपस्थित व्यक्तित्व है माननीय श्री धनराज जी। वे अत्यंत सम्मानित व्यक्तित्व है और कोरम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का अध्यापक है। मैं उसको हमारा क्लब का उद्घाटन करने के लिए हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रिजा। इस समारोह का अध्यक्ष भाषण देने के लिए आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती सुचित्रा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। Respected guest speaker, teachers and students, a happy morning to one and all. Hope all of you are fine and keeping a good health. Today, on the occasion of Hindi Club inauguration, it's my pleasure to be a part of this program. We all know that Hindi is the most commonly spoken language in India. It has its own identity and popularity in the linguistic world. We have rightly chosen July 31st to inaugurate the Hindi Club, as it is on this day the great Indian writer Munshi Premchand was born. He is one of the most celebrated writers of the Indian subcontinent and one of the foremost Hindi writers of the 20th century. Though Hindi is taught as third language at school, it is through
the club activities that students get an opportunity to learn the language in an informal and a friendly way. This year, we are carrying out all the club activities in the virtual platform. So let us make use of the best possible ways available in the online mode and derive maximum benefit for the students and the school. I hope you will understand that the main purpose of the club should be to provide more chances for students to understand the nuances of this beautiful language. Gaining more knowledge or able to converse fluently in Hindi will definitely boost our confidence, especially when we are traveling to the northern parts of India. I hope the club activities will be student-centered, involving more of fun-filled activities which will create interest for the students to learn the language. My best wishes for the team. धन्यवाद जी, आपकी वचन हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक है। प्रेमचंद जयंती समारोह और हिंदी क्लब के उद्घाटन पूजनीय श्री धनराज जी की वाणी से हो रहा है। इसके लिए मुख्य अतिथि श्री धनराज जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। प्रोग्रेसिव इंग्लिश स्कूल के आदरणीय प्रिंसिपल श्रीमती सुचित्रा जी, अध्यापक बंधुओं और मेरे प्यारे बच्चों, आज 31 जुलाई हमारे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन। इस अवसर पर आपके स्कूल में हिंदी क्लब का उद्घाटन होने वाला है। प्रेमचंद का जन्म 1880 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लमही नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कहानी, उपन्यास, समीक्षा, नाटक, संस्मरण आदि में उन्होंने रचनाएं की थी, लेकिन वे विख्यात कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य जग में प्रशोभित है। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी है और 18 उपन्यास भी लिखा है। पूस की रात, बड़े घर की बेटी, दीपदान, पंच परमेश्वर, कफन आदि उनके प्रमुख कहानियां हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, अहंकार, गबन, कर्मभूमि, गोधन आदि उनके प्रमुख उपन्यास है। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास माना जाता है और संसार का सबसे अनमोल रत्न है उनकी पहली कहानी है और सेवा सदन उनका पहला उपन्यास है। 8 अक्टूबर 1936 में उनका निधन हुआ था। तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को लेकर उन्होंने कहानी और उपन्यासों की रचना की थी। यही उनकी रचनाओं की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए आम जनता उनकी रचनाओं से आकृष्ट है और उनको कलम का सिपाही नाम से पुकारते हैं। भाषा पर प्रेम होने के लिए उस भाषा की रचनाओं से परिचित होना अच्छा है या जरूर है।
वाजन दिन में आप लोगों ने वाजन की विशेषताओं पर समझा है। मैं वाजन की विशेषता और पुस्तकों की महत्वों को लेकर आपको एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पुस्तक मेरा मित्र है, मुझसे बातें करती है। पुस्तक मेरा मित्र है, मुझसे बातें करती है। कथा कहानी कहती है, नए ज्ञान की नई खबर मुझसे आकर कहती है, मुझसे आकर कहती है। पुस्तक मेरा मित्र है, मुझसे बातें करती है। कथा कहानी कहती है, नए ज्ञान की नई खबर मुझसे आकर कहती है, मुझसे आकर कहती है। पुस्तक मेरा मित्र है। आज आपके स्कूल का हिंदी क्लब का उद्घाटन मैं अब उद्घाटन करके घोषित करता हूं। सबको एक बार प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपकी वाणी के द्वारा से हिंदी साहित्य का महान साहित्यकार प्रेमचंद के बारे में बहुत जानकारी मिली। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हिंदी के अमर साहित्यकार प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही नामक गांव में हुआ था। कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट आदि नामों से वे जाने जाते हैं। उनका असली नाम नरपत राय था। प्रेमचंद अपने आप को कलम से लड़ने वाला सिपाही माना था। उनके 300 से अधिक कहानियों को मानस सरोवर नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। उन्होंने 15 उपन्यास लिखे, जिनमें निर्मला, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि प्रमुख हैं। कश्मीरी सेब, 2 बैलों की कथा, कफन, फूस की रात आदि प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियां हैं। प्रेमचंद जी ने दुख दर्द से पीड़ित लोगों को अपने रचनाओं की प्रमुख पात्र बनाया है। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहांत हुआ। और मेरी प्रिय मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। सोहेललाल द्विवेदी का रचना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कभी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिने जय जय मत, हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। कश्मीरी सेब बाबूजी बड़े मजेदार सेब है, काश कश्मीर के, आप ये ले जाओ और खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा चल ले लो। प्रेमचंद की एक प्रमुख कहानी है कश्मीरी सेब। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। प्रेमचंद जी आशा करता है कि पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है, किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें बाजार में खरीदारी करते समय धोखेबाजी करने वालों से सावधान रहना चाहिए। दो बैलों की कथा में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता के बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इसमें मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। दो बैलों अपने मालिक से बेहद प्यार करते थे और जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है। कौन है, क्या चाहता है? हुजूर, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिनों से बीमार पड़ा है। कल सवेरे आओ, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं। दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। 4 दिन से आग नहीं गुली। निर्मला मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। निर्मला में अनमिल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत व मार्मिक कहानी है। इस उपन्यास के माध्यम से भारत की मध्यवर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का चित्रण हुआ। इस उपन्यास की कथा का केंद्र और मुख्य पात्र निर्मला नाम की 15 वर्षीय सुंदर और सुशील लड़की है। निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है। निर्मला का चरित्र निर्मल है। मेरा कविता का शीर्षक है काम हमारे बड़े बड़े। यह है मेरी प्रस्तुति। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। आसमान के चांद हम थाली बीच उतारा है, थाली बीच उतारा है। आसमान के सतरंग बैरल, भाका धनुष हमारा है, भाका धनुष हमारा है। आसमान के तारे बैरल, तीर हम घड़े घड़े, तीर हमारे घड़े घड़े। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े, काम हमारे बड़े बड़े। भरत रूप ने हमने ही तो दांत गिने थे शीलों के आप, रामल दांत गिने थे घट्टे असुर लुटेरों के, घट्टे असुर लुटेरों के।
ही मुझे संभाला। मेरा मम्मी बड़ी प्यारी, मेरा मम्मी बड़ी निराली। क्या मैं उनके बात बताऊं, सोचूं, उन्हें कैसे मैं जान पाऊं। सुबह सेवर मुझे उठाती, कृष्ण कहकर मुझे जगाती। जल्दी से मैं तैयार होता, उसके कारण स्कूल जा पाता। स्कूल से आती ही खुश होता जब मम्मी का चेहरा दिखता। पौष्टिक भोजन मुझे खिलता, गृह कार्य भी पूरा करवाती। माँ और माँ का प्यार निराला, पर मैं करती गड़बड़ घोटाला। जब मैं करती कोई गलती, समझाना करती कोशिश करती। लटाती मुझ पर अधिक प्यार, करती मुझे अधिक दुलार। मुझे पर गुस्सी जब आता, 2 मिनट में उठ भी जाता। मेरा मम्मी मेरा जान, रखती मेरा पूरा ध्यान। माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही मुझे संभाला। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। अंत में इस समारोह का कृतज्ञता ज्ञापन है। इसके लिए कक्षा 7 का शहजाजाबाद को मैं बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात। आदरणीय प्रिंसिपल, माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण और दोस्तों, नमस्ते। आज हम हमारे हिंदी क्लब का उद्घाटन और प्रेमचंद जयंती समारोह में इकट्ठे हुए हैं। अब हम इस समारोह के अंत तक पहुंच गए हैं। मेरा नाम शहजाजाबाद है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा है। मैं कृतज्ञता ज्ञापन के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं सबसे पहले स्वागत भाषण किए गए रिजा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अध्यक्ष भाषण किए गए हमारे प्रिंसिपल श्रीमती सुचित्रा जी को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे हिंदी क्लब और प्रेमचंद जयंती समारोह का उद्घाटन माननीय अतिथि धनराज जी के हाथों से संपन्न हुए हैं। आपकी उपस्थिति और प्रेरणादायक शब्दों से हमें हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद और उनकी रचनाओं के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई। मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हमारे शिक्षकगण और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी से इस समारोह का परिसमाप्ति यहाँ होने वाली है। अंत में सभी को धन्यवाद। साथियों, हिम्मत करो, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारना जो वही कभी आगे बढ़ा नहीं करता। धन्यवाद।